السلام علیکم، گول نیوز میں میں ہوں جواد خبر اور میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اور ناظرین، آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان ترقی اور استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ عوام کی خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے۔ سعودی عرب اور دوست ممالک کے تعاون سے معاشی استحکام ممکن ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں مستقبل میں سرمایہ کاری سے متعلق 2 روزہ عالمی کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ ہم مل کر ہی مشترکہ مستقبل اور ترقی کی منازل حاصل کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کی ترقی کے لیے خصوصی منصوبے شروع کیے، مصنوعی ذہانت سمیت IT کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ مزید بولے، مشرق وسطی میں امن کے لیے غزہ میں قتل و غارت روکنا ہوگی۔ Pakistan too is on a transformative journey, a journey of resilience, sacrifice, and a relentless pursuit of stability and growth. We share a common mission and invest in our youth to shape the future. Pakistan is laying foundation for a knowledge-based economy driven by innovation in 3 pivotal domains: artificial intelligence, education, and health, in which we look forward to forging useful partnerships. Peace is restored in Gaza and bloodshed is immediately stopped over there. Without that, world will not progress and will not prosper. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے 8ویں ایڈیشن کے موقع پر سعودی ولی عہد اور مملکت سعودی عرب کے وزیر اعظم محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے متعلق معاملات پر سعودی عرب کی پاکستان کی حمایت پر محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ بشرا بی بی کی رہائی اور جلوسوں سے غائب ہو کر نمودار ہونا معمول کی بات نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے ایک ہی سانس میں تحریک انصاف کی سیاست کو پوسٹ مارٹم کر دیا۔ بولے، بشرا بی بی کی رہائی ڈیل کا واضح اشارہ ہے۔ تنقیدی بیان پر چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا فوری رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ بولے، ڈیل کا تاثر غلط ہے، ہمیں ہر جگہ ریلیف ملے گا کیونکہ یہ سارے جعلی مقدمات ہیں۔ سارا وقت ان کیسز میں ہی گزر گیا، کہیں نہ کوئی بہانہ بنا دیتے اور کیس کر دیتے، لیکن ہم قانون کو فیس کر رہے ہیں، قانون کے مطابق اپنا ریلیف سیک کر رہے ہیں۔ ہماری ڈیلیں شیلیں نہیں ہوا کرتی، قانون کے مطابق چلتے، قانون کے مطابق اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں ہر جگہ ریلیف ملے گا۔ یہ سارے بوگس کیسز ہیں، سارے کیسز انشاءاللہ تعالی ختم ہوں گے۔ تحریک انصاف نے پنجاب الیکشن ٹریبیونلز تشکیل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم رادا نے سپریم کورٹ کے 30 ستمبر کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی۔ PTI نے الیکشن ٹریبیونلز تشکیل کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ میں سلمان اکرم راجہ کی جانب سے درخواست دائر۔ درخواست میں اپیل کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے 30 ستمبر کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ موقف اختیار کیا کہ محض چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان ملاقات الیکشن ٹریبیونلز کی تبدیلی کی وجہ نہیں بن سکتی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ٹریبیونلز کا جج کون ہوگا، یہ فیصلہ چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ 4 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ رجسٹرار نے 6 الیکشن ٹریبیونلز کو نوٹیفائی کیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات کے بعد الیکشن ٹریبیونلز کے لیے حاضر سروسز ججز کے نام واپس ہو گئے۔ سپریم کورٹ میں اب 17 کے بجائے 23 ججز ہوں گے۔ ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے تیاری کر لی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے بل جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی ترمیم پر مشاورت جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ججز کی تعداد بڑھانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 24 کرنے کی تیاری۔ حکومت قومی اسمبلی میں جمعے کے روز بل پیش کرے گی۔ بل نجی کارروائی کے دن بیرسٹر دانیال چودھری پہلے ہی پیش کر چکے ہیں۔ بل کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی اجلاس میں جمعے تک کی توسیع کی گئی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم پر بھی مشاورت جاری ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے بھی ججز کی تعداد بڑھانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ججز کی تعداد 24 بھی کر دی جائے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم بدنیتی پر مبنی ہے، عدلیہ کے نظام پر بڑا وار کیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمان آئین کے بنیادی ڈھانچے کو بدل دے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکمران اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں۔ ملک ہے جس نے ایک نقطے پر آئینی ترمیم کی ہے، تو اس آئینی ترمیم کی انٹینٹ آف دا فریمرز، بنانے والی کی نیت صرف مکمل بدنیتی تھی، اور ہم نے عدل کے نظام پر اتنا بڑا وار کیا ہے کہ اگر آج اس کو سنبھالا نہ دیا گیا تو آپ یقین کریں کہ یہاں کوئی عدل کا نظام نہیں رہے گا۔
आज हुकूमत आईनी तरमीम इस बुनियाद पर करती है कि मेरे रास्ते में अदलिया हायल ना हो सके। हम अदल के निज़ाम को दबाने के लिए बैठे हैं, अवाम के लिए नहीं बैठे। हम अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपने इक़्तिदार को पर से किसी किस्म की रुकावट हटाने के लिए अदल के निज़ाम को ख़त्म करने पर तुले हुए। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात लाहौर से आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार ने मार्का जीत लिया। मियां रऊफ अता 580 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार मुनीर काकड़ ने 458 वोट हासिल किए। नौ मुंतखब सदर मियां रऊफ अता कहते हैं, वकला ने जो एतमाद दिया उस पर पूरा उतरूंगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात लाहौर से आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार ने मार्का जीत लिया। मियां रऊफ अता 580 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार मुनीर काकड़ ने 458 वोट हासिल किए हैं, जबकि नौ मुंतखब सदर मियां रऊफ अता कहते हैं कि वकला ने जो एतमाद दिया उस पर पूरा उतरूंगा। वकला की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम करूंगा, आईन और कानून की बालादस्ती के साथ हैं। वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट बार का इंतखाब जीतने पर इंडिपेंडेंट ग्रुप को मुबारकबाद। कहा, पुरुमीद हूँ नौ मुंतखब सदर वकला की फलाह बहबूद के मिशन को जारी रखेंगे। वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात जीतने पर आसमा जहांगीर ग्रुप को मुबारकबाद पेश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर। समाअत 7 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने केस की समाअत की। पानी पीटीआई और उनकी अहलिया से मुतालिक 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बरियत की दरखास्त पर समाअत के दौरान पीटीआई अरकान असेंबली की बड़ी तादाद अदालत पहुंच गई थी। दौरान समाअत ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड हाई कोर्ट के सामने पेश करने की दरखास्त मंजूर की गई। तो दूसरी जानिब हादी अली चट्ठा और ईमान मजारी को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत थाना पारा में मुकदमा दर्ज है। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने समाअत के दौरान जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा की वजह से इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की जग हसाई हुई। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको खबर दें कि शहर इक़्तिदार भी अब डाकुओं के रहमो करम पर है। 24 घंटों में डकैती की 4 वारदातें। एक ही मुलजिम हाथ में क्लाशन को उठाए वारदातें करता रहा। सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी से पहली 2 वारदातों में मुलजिम को नाकामी हुई। मुलजिम फिर भी ना रुका, कैश वैन को लूटा और फिर G9 में 17 लाख लूट कर फरार हो गया। ये कराची या कच्चे का इलाका नहीं, ये सेफ सिटी शहर इक़्तिदार है। एक डाकू क्लाशनकोफ लेकर पूरे शहर में घूमता रहा। 24 घंटों में डकैती की 4 वारदातें, 2 नाकाम हो गयीं। लेकिन डाकू की हिम्मत तो देखी कि इसने नाकामी के बाद मजीद 2 वारदातें की और लाखों रुपए कैश ले उड़ा। मुलजिम ने पहले थाना I9 की हदूद में कायम बैंक में डकैती की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड की मज़ाहमत से वारदात नाकाम हो गयी। दूसरी वारदात में पेट्रोल पंप पर खड़ी वैन को लूटने की कोशिश भी नाकाम हो गयी। मुसलसल 2 नाकामियों के बाद भी डाकू बिला खौफ खतर G9 के सामने खड़ी कैश वैन को लूटने पहुंचा और कैश से भरा बैग ले उड़ा। फायरिंग भी की, जिससे एक शहरी जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिम ने सिर्फ इसी पर इक्तफा न किया, कुछ ही देर बाद G9 में ही एक और वारदात की और 17 लाख रुपए छीनकर फरार हो गया। मुसलसल 4 वारदातों के बाद भी पुलिस मुलजिम को पकड़ने में नाकाम रही। वाकयात की CCTV फुटेज भी सामने आ गयी। IG पुलिस इस्लामाबाद कहते हैं पुलिस को मजबूत सबूत मिले हैं, मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंसिडेंट था जिसमें एक जो इनोसेंट है जो एक शहरी है उनकी डेथ भी हुई। दिस इज द 4th इन रो। कल बड़े ही क्रेडिबल क्लूज हमें मिले और ऑलमोस्ट हमने कोई 50-55% के करीब हमने चीज़ें ट्रेस आउट की। कुछ हमने इसमें शॉर्ट लिस्ट बंदे की हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी कंपनीज में बहुत सी शिकायत हैं, कंपनी से पॉलिसी लेकर इसे बेहतर बनाया जाएगा। तो दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां गैर मुल्की बाशिंदे लूट लिए गए हैं। डकैत मुबैना तौर पर पुलिस जैसी वर्दी में मलबूस से DHA हुकाम के मुताबिक वाक़या इतवार को दरख्शा थाने के हुदूद खयाबान मुजाहिद के करीब पेश आया। पोलैंड के बाशिंदों से 1000 से ज़ायद डॉलर्स करेंसी लूटी गई। गैर मुल्कियों के पास ना ही सिक्योरिटी और ना ही उन्होंने किसी इंतजामिया को आगाह किया था। पुलिस ने बताया कि कीमती अशिया से महरूम होने वालों ने पुलिस से अब तक कोई राबता नहीं किया है। वाक़े की फुटेज मिलने के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, गैर मुल्कियों को लूटने से मुल्की वक़ार खराब होता है। गैर मुल्की सयाहों के साथ मुकामी लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर की तहसील परोम में रात गए मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी अफराद पंजगोर में डैम की देखभाल पर मामूर थे। बलूचिस्तान हुकूमत ने वाक़े की तस्दीक कर दी है। मुल्क दुश्मन अनासिर का बलूचिस्तान पर एक और हमला। पंजगोर की तहसील परोम में फायरिंग। बुज़दिलाना कार्रवाई में 5 बेगुनाह अफराद को
मौत की नींद सुला दिया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने वाक़े की तस्दीक की। कहा, पंजगोर के इलाके प्रूम में डैम की देखभाल पर मामूर एहलकारों पर हमला हुआ। फायरिंग से 5 अफराद जान से गए, 2 अफराद जख्मी हुए जिनकी हालत खतरे से बाहर है। जिले इंतजामिया के अफसरान जाए वक़ूआ पर मौजूद हैं। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने फायरिंग के बाद कंपनी की मशीनरी को भी नजर आतिश कर दिया। लाशों और जख्मियों को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिला पंजगोर में दहशतगर्दों के हमले का यह पहला वाक़या नहीं। आज से ठीक 1 माह कबल मुसल्लह अफराद ने पंजगोर में एक घर पर फायरिंग करके 7 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया था। कराची में शदीद गर्मी में बिजली की तमील बंदिश, शहरियों का पारा चढ़ गया। मलीर में आवाम सड़कों पर निकल आए, इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। आगे बढ़ते हैं, मईशत के मैदान से अच्छी खबर शामिल करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क के मंसूबों पर खर्च होगी। वजीर खजाना ने सदर ADB से मुलाकात के दौरान दरख्वास्त की थी। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियां मस्बत राह पर गामजन। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक कर्ज माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए मंजूर हुआ है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सदर ADB से मुलाकात के दौरान दरख्वास्त की थी। ADB का कहना है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। कर्ज की रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क के मनसूबों पर खर्च होगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात के बाईस सालाना $2 अरब का नुकसान हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा पाकिस्तान में मनसूबाबंदी और तैयारी के निज़ाम को मजबूत किया जाएगा। मौसमियाती माली मुआवनत के बाद फौरी माली इमदाद को बेहतर बनाने के लिए इनकलाबी इक़दामात किए जाएंगे। पाकिस्तान में पहली बार डिजास्टर फाइनेंसिंग का नया तरीका मुतारिफ करवाया जाएगा। आफात की सूरत में बजट को फौरी मदद फराहम की जा सकेगी। सरमायाकारों की चांदी हो गई। पाकिस्तानी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद बढ़ गया। हुकूमत की शबाना रोज मेहनत रंग लाने लगी। बैरूनी सरमायाकारी से रिकॉर्ड मुनाफा कमाया गया। स्टेट बैंक की बैरूनी सरमायाकारी मुनाफे की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी से कमाए $11.87 करोड़ सितंबर में वापस भेजे गए। माली खिदमात की फराहमी में आई बैरूनी सरमायाकारी से कमाए $2.86 करोड़ वापस भेजे गए। इस साल पहली से मुनाफा वापस भेजा गया। मुआशी तजियाकार बाकिर जाफरी कहते हैं, पाकिस्तान में फॉरेन फर्म्स का मुनाफा निस्बतन बेहतर रहा। पाकिस्तान में फॉरेन फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी निस्बतन बेहतर रही है। आफ्टर दैट वी सॉ ह्यूज डिवैल्यूएशन के बाद, जो लॉसेस के बाद अब जो है वो रुपी डॉलर की पैरिटी मुस्तहकम हुई है, रुपी पाउंड की पैरिटी मुस्तहकम हुई है, तो अब जो है वो प्रॉफिट रिपैट्रिएशन बढ़ना शुरू हो गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2024 की पहली सहमाही के मुकाबले में माली साल 25 की पहली सहमाही में 86.6% ज़ायद मुनाफा भेजा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का रिकॉर्ड साज दिन रहा। 100 इंडेक्स 90,864 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2,85,000 रुपए फी तोला हो गया। डॉलर की कीमत में 6 पैसे का इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का रिकॉर्ड साज दिन रहा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 90,864 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। दौरान कारोबार 1163 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। दिन भर मजमूई तौर पर 28 अरब रुपए के 60 करोड़ हसस का कारोबार हुआ। कायम मुकाम MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नदीम नकवी कहते हैं, मार्केट में एक मोमेंटम है। बहुत से लोग फिक्स्ड इनकम से स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। कभी उम्मीद है कि शरह सूद मजीद कम होगी। मार्केट ऑब्वियसली इस वक्त एक मोमेंटम ड्रिवन मोड में है। स्टेट बैंक की अगली पॉलिसी मीटिंग पे है, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग पे, और उसमें एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंटरेस्ट रेट्स फर्दर कम होंगे। तो काफ़ी लोग जो कि फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टेड थे वो अब कोशिश कर रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में भी आएँ। सराफा मार्केट में सोने की कीमत में भी इजाफा, 1,600 रुपए महंगा हो गया। 2,85,000 रुपए फी तोला तक जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना भी 1,372 रुपए महंगा हुआ, 2,44,342 रुपए पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर की ऊंची उड़ान, ओपन मार्केट में डॉलर 6 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 74 पैसे पर पहुंच गया। और नाज़रीन, सर्दियों में गैस मिले या ना मिले, कीमतों में इजाफा जरूर होगा। कंपनियों ने ओगरा से गैस की कीमतों में 50% से ज्यादा के इजाफे की दरख्वास्त कर दी है। दरख्वास्त के मुताबिक सुई सदर गैस कंपनी ने फी MMBTU में 669 रुपए, जबकि सुई नॉर्दर्न ने 64 रुपए 16 पैसे फी MMBTU इजाफा मांगा है।
टेढ़ी उंगली से कैसे निकालते हैं। मुल्क की तवानाई के शोबे इस काम में माहिर हैं। शहरी सर्दियों में एयर कंडीशन बंद करेंगे तो गीजर चलाएंगे, इसलिए तो मौसम सरमा की आमद से कबल ही गैस वालों ने प्लान बना लिया। गैस कंपनियों ने कीमतों में इजाफे के लिए ओगरा से रजू कर लिया। सोई नादरन ने औसत कीमत में 64 रुपए 16 पैसे फी MMBTU की अर्जी बना ली। देखा देखी सोई सदरन वालों ने 669 रुपए 7 पैसे की दरख्वास्त तैयार कर ली। नौदरन और सिदरन गैस सार्फिन के नरखों में होशरुबा इजाफे के बाद सोई नादरन का औसत नर्ख 1810 रुपए 38 पैसे फी MMBTU, जबकि सिदरन का औसत यूनिट 1920.39 पैसे फी MMBTU तक पहुँच जाएगा। ओगरा ने गैस कंपनियों की दरख्वास्तों पर गैस सार्फिन से तजावीज मांग ली। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कराची प्रेस क्लब चौक पर 101वीं सालगिरह के मौके पर तुर्की का परचम लहरा दिया। फायरवर्क का शानदार मुजाहरा किया। पाक तुर्की ताल्लुकात को खिराज तहसीन पेश किया भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध ने कहा कि सालगिरह पर तुर्की के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुर्की ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मैं यहाँ पर पूरी जो तुर्किया की कौम है उसको आज 101st नेशनल डे पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तुर्किया दोस्ती जो है वो पाकिस्तान की जो सकाफत है और पाकिस्तान का जो टूरिज़्म है उसमें भी हमें मदद करेगी। तुर्किया हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का दोस्त रहा है। पाकिस्तान दोस्ती को तुर्किया ने साबित किया है। हमारी जो पाक नेवी है उसमें तुर्किया की नेवी का जो जॉइंट वेंचर है वो बहुत मजबूत और मुस्तहकम है। जिक्र अमरीकी सदारती इंतखाबात का, जिससे कुछ दिन कबल न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम एक नए तनाज़े का शिकार हो गई है, जिस पर नस्ल परस्ती के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इंतखाबात से कबल न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम एक नए तनाज़े का शिकार हो गई। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की मुहिम के एक प्रोग्राम में स्टैंड अप कॉमेडियन टोनी हिंचक्लिफ ने पोर्टो रिको को कचरे का तैरता जजीरा कहकर गुस्से की लहर दौड़ा दी। टोनी हिंचक्लिफ के इस बयान को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। ये मुतनाज़े बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दोनों सदारती उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। तज्जियाकारों के मुताबिक इस किस्म के बयानात से ट्रंप की मुहिम पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, जबकि लातीनी वोटर्स की हमदर्दियां मजीद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की जानिब बढ़ सकती हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात सिर्फ चंद दिन की दूरी पर हैं। ऐसे में मुतअद्दिद बिजनेस टाइकून्स, शोबिज़ सितारों समेत मारूफ शख्सियात डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की हिमायत में पेश हैं और अपनी पसंदीदा उम्मीदवार की कामयाबी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। ट्रंप और कमला हैरिस को कौन कौन सी अहम शख्सियात सपोर्ट कर रही हैं, आए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदारती इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, जिसमें कई मशहूर शख्सियात और बिजनेस टाइकॉन्स डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की हिमायत में मुतारिक हैं। एलन मस्क ने ट्रंप के हक में लाखों डॉलर्स खर्च किए हैं। पहली और दूसरी तरमीम की हिमायत करने वालों में से रोजाना एक शख्स को $1 मिलियन देने का ऐलान किया है। लैरी एल्सन ने ट्रंप के लिए $2 करोड़ अतिया किए। गूगल के शरीक बानी लैरी पेज ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के लिए $24 लाख फराहम किए। बिल गेट्स ने कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए $50 मिलियन दिए हैं। गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने भी कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान किया। WWF रेसलर हॉगन ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में पेश हैं। हालिया सर्वे के नताइज के मुताबिक ट्रंप को 7 अहम रियासतों में हैरिस पर मामूली बरतरे हासिल है। कमला हैरिस पॉपुलर वोट में 1.6% आगे हैं। ट्रंप के इलेक्टोरल कॉलेज जीतने के इम्कान 53% हैं। 5 नवंबर को नताइज आने पर पता चलेगा कमला मैदान मारती है या ट्रंप के सर पर ताज सजता है। खेल के मैदान से खबर है, बात होगी दौरा ऑस्ट्रेलिया की, जिस पर कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने से पहले मोहम्मद रिजवान ने अपनी शराइत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मनवाई। चैलेंजिंग टूर पर क़यादत के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस न होने की वजह से बोर्ड को कड़वी गोली निगलनी पड़ी। ज़राए के मुताबिक कैंगू टूर से वापसी पर बोर्ड क़यादत के हवाले से दस्तयाब ऑप्शंस को एक मौका जरूर देगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंग्लैंड से सीरीज में फतह के बाद शायकीन खेल की तवक्कुआत का बोझ एक बार फिर से पीसीबी को कैंगरूज के टूर पर एक मुस्तहकम कप्तान दरकार था। निगाह इंतखाब मोहम्मद रिजवान पर जा ठहरी। विकेट कीपर बैटर ने रजामंदी से कबल पीसीबी को डिमांड लिस्ट थमाई। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान ने लगी लिपटी नहीं रखी। वाज़े किया कि बगैर इख्तियार के कप्तान बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। अथॉरिटी दी जाएगी तो क़यादत कबूल, दूसरी सूरत में बोर्ड जाए उनको भूल। प्लेइंग 11 क्या होगी, सिलेक्शन कमेटी के साथ उनको भी इंतखाब का हक होगा। स्क्वाड में किसको शामिल किया जाए इस पर भी मुशावरत होगी। प्लेयर्स के हवाले से किसी भी एक्शन से कबल एतमाद में लिया जाएगा। किसी तनाज़ से बचने के लिए बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान की तमाम शराइत मान ली। ज़राए के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के नताइज मोहम्मद रिजवान के बतौर प्लेयर कप्तान मुस्तकबिल का फैसला करेंगे।
اور ناظرین، چلغوزے کا نام سنتے ہی ٹھنڈے موسم کی سوغات سے لطف اٹھانے کا من کرتا ہے، مگر اب بازار میں چلغوزے کے دام اس قدر بلند ہیں کہ سن کر ارمانوں پر ہی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ چلغوزے کے ریٹ 13 سے 14 ہزار روپے کلو تک پہنچ گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چلغوزے خریدنے کے لیے اب BC ڈالنا پڑے گی۔ دیکھتے ہیں حیدرآباد سے عرفان آرائی کی یہ رپورٹ۔ چلغوزے کھانے کے شوقین اب بڑی رقم کا کر لیں بندوبست، کیونکہ چلغوزہ اب غریب اور متوسط طبقے کا میوہ نہیں رہا۔ اب موسم سرما میں چلغوزے خریدنے کی آرزو قیمت سن کر ہی دم توڑ جائے گی۔ چلغوزہ 13,500 14,000 روپے کلو ہو گیا۔ 200 گرام کا پیکٹ ہے 2700 کا 2800 روپے کا، کون لے گا؟ ملک میں چلغوزے کی پیداوار مسلسل کم ہو رہی ہے۔ قبائلی علاقوں میں چلغوزے کے جنگل اب نایاب ہوتے جا رہے ہیں۔ چلغوزے مہنگے کیا ہوئے، سیل کم ہونے سے دکاندار بھی پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت چلغوزے کی پیداوار بڑھانے کے اقدامات کرے تاکہ غریبوں کو بھی یہ سوغات چکھنے کا موقع مل سکے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔